अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सके। शो शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। शुरू करने से पहले कपल ऑफ थिंग्स। एक तो बात ये कि अब आपको पता है कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को देता हूँ शो के दौरान, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपसे पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि अब मेरे पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं क्यू में लाइनें लगा सकूँ। तो फिर मैं एज इट इज़ आप कॉल करते हैं मैं आपकी कॉल अटेंड कर लूँगा। सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है, बिकॉज अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि तारिक भाई शो से बाहर हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीका बड़ा आसान है। फर्म की डिटेल्स आई होती हैं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर हमारा एक सिस्टम है जिसमें आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और उस पर मैं डायरेक्टली आपको कॉल बैक कर लूँगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक करें या आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक करें। और उसकी फ़िक्र ना करें आप कितना दूर रहते हैं, अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। मैं टेलीफोन पे भी आपसे बात करके और आपके डॉक्यूमेंट्स में ईमेल पे चेक कर सकता हूँ। तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Yeah, walaikum assalam. My name is Muhammad. Yes. Yeah, I'm calling regarding my uncle. I applied for my uncle immigration visa on the UE extended family member, and they refused me at the beginning. Then I reapplied it, and we went to the court, and the judge has allowed the appeal in November, 5th of November. So now it's been quite a long time after 5th of November. What can I do? Because I emailed them as well. They did not respond to anything. So if you just could advise me on what I can do on that one. And second question, I have one more question. Can I ask you quickly? Yes, no problem. Yeah, so second question I have is whether once he comes to this UK, so he's going to get the card, isn't it? So far as my knowledge, I know that when he comes to this country, once he gets visa and everything, that he needs to go with his proof of address, and they will, then he can apply for the pre-settlement card. All right. So I'm assuming that's the thing. So if you just could tell me once he comes to this country, what he needs to do to get the pre-settlement. And I had something as well, just to ask you this one as well. Once he applies for the settlement after 5 years, does he need to be still dependent on me? So, for example, do I still need to give him, money transfer? Do I need to show those proof that he is on this 5 years he's still dependent on me? Okay. That's my final question here. Thank you. Okay, brother. Islam. Welcome, Aslam. Thank you so much for your call. I mean, first thing I need to clarify with you, the purpose of the show is to give you information. So please, whatever we discuss on the show, do not take that as advice. For advice, you need to go to a competent person, show your paperwork, and then they can give you advice. So I get very worried when people ring to the show and they say, oh, give us this advice. Because I've been very clear on this. The purpose of the show is not to give you advice, but to share information on immigration based on my experience, and then hopefully give you informative information that at least you're at ease about your situation. Now, first of all, the starting point. You had 3 very good questions. In terms of the appeal, once the appeal is allowed, there is an appeal implementation unit that will contact the VFS center if it's an overseas account, and then they will contact the applicant and ask for the passport to be submitted. And once the passport is submitted, then they get the visa, they get a small stamp to enter the country, meaning the UK. Now, in the past, the gap between appeal allowed and the appeal implementation unit contacting the VFS was about 5 to 6 months. But currently, the Home Office is burdened with a lot of work, and I have seen this period been extended to 8 to 10 months. So I would say and give you this information that perhaps you should contact the Home Office. There is the department within the Home Office that deals with this thing, and you should contact them by email. Explain to them that the appeal was allowed and you're chasing for the passport document or for the letter to be issued to the applicant
so they can submit the passport to the local embassy. So perhaps that's step number one. If your direct contact is unfruitful, you should go to your local MP, explain the situation, and the MP would contact the Home Office, and the Home Office has an MP liaison department that will reply to the MP. So the first stage is contact directly, contact through the MP. There is a second stage, which is then it starts getting a bit serious, where you could lodge a formal complaint with the Home Office and say there's a lot of time that has passed and no action has been taken, and you are chasing the Home Office for a result. You have to be very careful that you do not make a complaint in haste. You have to at least leave yourself 6 to 7 months before you make a decision on lodging a complaint against the Home Office. But I think in the first instance, contacting the Home Office directly and through the MP is a good option. Now, your second part of the question, and I think your second and third part was very interesting. And I'm saying it in English because I think you spoke in English, so I'm trying for you to understand my answer. When your extended family member, your dependent relative will arrive in this country under the EU scheme, they would be under the visa they've been granted. They would be granted a 6 months visa. And when they come into this country, you have to make a new application. So it's not that simple that you simply provide evidence of where you're living. You have to complete a new set of application. Again, nothing to worry about. It's just a complete application you have to make to the Home Office, which is the EU pre-settled status application. Now, interestingly, and this is what has been happening for the last 2 to 3 months, I did share this information with a lot of people who listen to my show, who follow my show, that recently people who've invited the parents over, and after the 5 months, when they have made the application for the extension, meaning, in other words, it's not an extension pretty much, it's a new application under the pre-settled status, because once they're here, it's not an automatic card is issued, they have to make a new application. Home Office is seeking additional information. Home Office is seeking the evidence of dependency prior to coming to the UK and evidence of dependency while the parents were in UK. And the Home Office is asking this information. Now, I find it very odd because a lot of people contacted me and said, this is what's happening. We made the application for our parents on the route, and the Home Office has given us an addendum email and they're asking this evidence. We don't understand because they just given them the visas a year ago and now they're asking for the evidence again. Now, obviously, if you do have the evidence, you provide the evidence, or else there is the Home Office policy in EU settlement applications. And what the Home Office policy states is that if we have granted your visa under the EU settlement scheme, we will not ask for this evidence again. So I do not know whether the initial application for your uncle was under the EU settlement scheme or under the EA family permit. Considering he's your uncle, not your parents, I presumed it's the EU settlement, rather than the EU settlement scheme, your application was under the EU permit. Either way, you'll have to make a fresh application and be prepared if they ask for documentation, you'll have to provide that. Now, the final part of your question, and this is where it gets interesting, because when Appendix EU was written, I read large portion of it, and one of the observations I had, and I mentioned this observation many months ago in one of the shows, is that I wouldn't say it's poorly drafted. I would say that there are a lot of areas in the drafting of this application which are of these rules which are very gray area. And I think over the period of time, improvements will be imposed upon these rules through court proceedings. And one very good example, in fact, I mentioned this before Zebrano, and one very good example is what's happening with Zebrano, that now the Home Office is forced to rewrite that part of the rule. I think there'll be other applications made in the future where I think there would be better clarification on how these rules should be applied on applicants. In short, if somebody says to me that if I call my uncle as my dependent relative, and they get the 5-year visa, do the dependency should exist during these 5 years? Now, there's the problem, in my view, not problem for you, in my understanding of what's written. If you read the policy, they're very clear that if somebody has come in on a dependency under the EU settlement scheme, or we've granted you
a visa under the EU settlement scheme, after the period of 5 years, we will grant you the indefinite status. In other words, we will not question the dependency. This is in the policy. Funny enough, when you read the immigration rules, it says that throughout the 5 year period, you must fall within the meaning of the Appendix EU. In other words, if the purpose of or the purpose upon which you were granted a visa was dependency, then for the 5 year period, you should be dependent on that person, the sponsor. But obviously, because it's written in the policy guidance, a lot of people are going to use that policy guidance for this purpose. So it's a very gray area, but at the moment, if possible, keep them your dependent for 5 years. If not possible, then I presume you could always, after 5 years, say this is what the policy said. But mark my words, I think there'll be other cases in the upper tribunal, Court of Appeal, Supreme Court perhaps, that will further elaborate what's Appendix EU. I won't say it's poorly drafted, but there are a lot of gray areas in Appendix EU, which needs to be, let's say, interpreted properly, and I'll be interpreted through the courts. So thank you so much for your call. हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी सर. सर तारिक साहब, मेरा एक क्वेश्चन है जी. मैं EU नेशनल हूँ. मेरी वालदा को मैंने EU सेटलमेंट स्कीम के जरिए यहाँ पे बुलाया था जी. तो अभी वो मार्च से मेरे साथ रह रही हैं, तो फिर यहाँ आके मैंने फर्दर EU सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की थी जी. तो उन्होंने मुझसे डिपेंडेंसी मांग ली है वालदा की जी. तो जो भी आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक मैंने यहाँ की प्रूफ ऑफ एड्रेस और जीपी का लेटर और यहाँ का बैंक अकाउंट और उसमें ट्रांजैक्शन की और जो भी था वो सारा भी उनको लगा के भेजा है जी. लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही. मजीद पुरानी जो है वो मुझसे डिटेल मांग रहे हैं कि इससे पहले वो तो आपकी डिपेंडेंट थी कि नहीं थी. तो इससे पहले तो मेरे पास कोई ऐसे प्रूफ है ही नहीं कि मैं उनको 1 साल पुराना या 2 साल पुराना कुछ प्रोवाइड कर सकूं. और आपने अपनी मदर की एप्लीकेशन EU सेटलमेंट स्कीम के थ्रू डाली थी या EA परमिट के ऊपर डाली थी? शुरू वाली जब आई थी पहली दफा आई थी तो वो जो डेडलाइन थी उस खत्म होने के एक दिन पहले EU सेटलमेंट स्कीम के तहत डाली. ठीक है. अब मेरा जवाब जरा गौर से सुन लें, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपसे सवाल पूछा. जी जी. अब ये मेरा ये हमारे शो में जवाब सुन लें. थैंक यू. थैंक यू सो मच. देखें, ये उन्होंने ही कॉल किया जिसको भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में जिस सवाल का जवाब दिया था कि इन्होंने ये बोला कि जी मैं अपनी मदर को अप्लाई किया एज माय डिपेंडेंट अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम, और जब वो इस मुल्क में आई 6 महीने का वीज़ा होता है और 6 महीने के बाद उनको एक्सटेंशन अप्लाई करनी होती है. और जब उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की तो अब होम ऑफिस मांग रहा है कि जी मुझे एविडेंस दो, और ये देखने में आया कि होम ऑफिस एविडेंस मांग रहा है नॉट ओनली करंट, बट वो कहता है कि आने से पहले का भी एविडेंस दो कि जब वो अपने होम कंट्री में थी वो आपकी डिपेंडेंट थी. तो अभी आपके पास, पहले तो मैं बता दूं, एक ऑप्शन तो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया बिफोर आपकी कॉल सर, मैं लोगों से ये बात कर रहा था कि एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें. अगर होम ऑफिस उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मुतमईन नहीं है, वो आपको राइट ऑफ अपील देगा और फिर आप कोर्ट में जाके उस केस को लड़ेंगे और एक जज के आगे इस बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि आपकी मदर आपकी डिपेंडेंट है. अगर आप परेशान हो रहे हैं कि जी मैं कैसे इस बात को प्रूव करूंगा, तो बेहतर है किसी ऐसे कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जिनकी बड़ी महारत है इन केसेस के अंदर, और फिर वो आपसे आपके और सवाल पूछ के आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप अपना केस कैसे तैयार कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं आपका जवाब और इस सवाल का बिल्कुल ख़त्म कर दूं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. एक तो ये कि जब आप अपनी ये EU सेटलमेंट स्कीम मदर की डालते हैं और वो अगर किसी वजह से रिफ्यूज़ करें तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ऑप्शन देते हैं और एक अपील का ऑप्शन देते हैं. तो बेहतर ये है कि आप अपील के ऑप्शन के ऊपर जाया करें. ऑफ कोर्स इस वक्त तो ये है एडवाइस, अगर कल एडवाइस नहीं इन्फॉर्मेशन है, अगर कल कानून चेंज हो गया बात डिफरेंट है, लेकिन इस वक्त बेहतर होता है अपील के ऑप्शन पे जाना, बिकॉज अपील के अंदर आप एक इंडिपेंडेंट जज के आगे जाके अपनी पूरी बात बता सकते हैं, आपकी मदर भी उधर जा सकती है. तो वो जो क्रेडिबिलिटी है
आपकी ज़बानी मुंह से बोलने की कोर्ट में उसका बड़ा वेट होता है। एक तो ये बात हो गई। अब मैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको, एंड आपको बड़ा उससे होपफुली फ़ायदा होगा। जो बात मैंने आपसे क्यों पूछी कि आपने ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत मदर की एप्लीकेशन पहली दफ़ा डाली थी या नहीं, अब उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर आपने अपनी मदर की ईयू सेटलमेंट स्कीम वाली एप्लीकेशन डाली थी, दैट मीन्स कि जो उनको एंट्री क्लियरेंस वीज़ा मिला था वो अंडर द ईयू सेटलमेंट स्कीम मिला था। अब जो ईयू सेटलमेंट स्कीम की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है होम ऑफिस का, वो ये बोलता है कि अगर आपको हमने पहले ईयू सेटलमेंट स्कीम के अंडर वीज़ा दिया है तो आपको दोबारा डिपेंडेंसी शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो ईयू सेटलमेंट गाइडेंस के अंदर है होम ऑफिस की, आप वो वाला पैराग्राफ निकाल के होम ऑफिस को भेज सकते हैं ये बोल के कि देखिए जी, मेरी मदर को जो पहली दफ़ा वीज़ा मिला था वो ईयू सेटलमेंट स्टेटस के ऊपर मिला था। आपकी पॉलिसी बोलती है कि एक दफ़ा आपने जब किसी को ईयू सेटलमेंट वीज़ा दे दिया, उसको दोबारा डिपेंडेंसी प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्यों आप मेरी मदर से डिपेंडेंसी मांग रहे हैं? तो ये चीज़ ज़रूर उनको बोलें साथ। और अगर वो किसी वजह से आपकी बात नहीं मानते, रिफ्यूज़ होता है, तो घबराएं नहीं। यू हैव टू गो टू कोर्ट। और जिस तरह मैंने आपको बोला कि आप मशवरा किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से लें जो फिर आपकी मदद कर सके। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, मुझे थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी जी जी, ये मेरी सिस्टर के बारे में है। वो स्टूडेंट वीजे पे यहाँ आई है इंग्लैंड में। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस में उसकी डिग्री है। तो ये उसकी जो उसके सारे सेमेस्टर पिछले जो है वो क्लियर हो गए हैं। जो लास्ट डेजिटेशन थी वो सॉरी मुझे थोड़ा हो रहा है 25 अप्रैल को थी। तो जो कि यूनिवर्सिटी ने 25 अप्रैल को नहीं की, बल्कि उसको कंडक्ट किया है 3 मई को। तो अब ये हो रहा है कि उसका रिजल्ट जो है वो 23 मई को एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसका वीज़ा जो है वो 15 मई को एक्सपायर हो रहा है। तो हमें थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम कौन सी एप्लीकेशन ड्रॉप करें। क्या हम पोस्ट ग्रेजुएट जो एप्लीकेशन है वो ड्रॉप करें कि कोई और एप्लीकेशन ड्रॉप करें कि ये जो थोड़ा सा टाइम है ये हम गेन कर सकें। तो प्लीज़ अगर इस बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरा ये कि जो हमने यूनिवर्सिटी से कहा था कि आप हमें कोई लेटर बना दें, हम होम ऑफिस से ले लेते हैं, टाइम थोड़ा गेन कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये ऑनलाइन है आपका कोर्स, तो आप कहीं पे भी चले जाएं, हम आपकी डिग्री आपको वहाँ भेज देंगे, तो आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये अगर आप प्लीज़ हमारा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर हम ये जो एक्सेप्शनल इंश्योरेंस एप्लीकेशन होती है, क्या हम ये कर सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट जो एप्लीकेशन है वो करें? कुछ कंफ्यूजन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि मैंने अपनी FLRM एप्लीकेशन जो है वो ड्रॉप की है। तो मुझे होम ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आई और उन्होंने कहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो हम देंगे 10 to 11 मंथ के बाद आपको जो है ना मिलेगा रिजल्ट। तो मैं क्योंकि मैंने तो स्टैंडर्ड ही जमा करवाई है, तो क्या ऐसे हो सकता है कि मैं इसको अगर चेंज करके तो एक्स्ट्रा फीस पे करके तो जो प्रायोरिटी क्या जो जल्दी जो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है वो ले लूँ? और अगर क्योंकि अगर इट्स लॉन्ग टाइम में मेरी वो जॉब जो है वो फिनिश हो गई तो फिर वो कहेंगे कि आपकी इनकम नहीं मिल रही। तो ये मुझे थोड़ा सा ना आप प्लीज गाइड कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी। ऑलराइट, थैंक यू जी। और मेरे पास वो टीवी नहीं है तो प्लीज मैं फोन पे बात सुन। ओके, थैंक यू सो मच जी आपकी कॉल का।
आपके पास अगर नहीं, अच्छा मैं आपकी कॉल फिर ओपन रखता हूँ, लेकिन प्लीज़ कुछ बोलिएगा नहीं, मैं फिर कॉल बाद में काट दूंगा जब मैं अपना जवाब कंप्लीट कर लूँ तो। जी, पहली बात तो ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स मैं मिलता हूँ जिनकी ये सिचुएशन होती है कि उनका वीज़ा ख़त्म होने को आया और उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, और उनको ज़ाहिर बात है ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते वो, क्योंकि ग्रेजुएट वीज़े के लिए आपके पास कंप्लीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, या एटलीस्ट कंफर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। इस सिनेरियो में जो भी आपने बोला, ये थोड़ा गैप इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि उनका जो वीज़ा है वो 15 मई को तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और 23 मई तक एक्सपेक्टेड है कि जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो कॉलेज वाले हैं, वो आपकी बहन को डिग्री दे देंगे। तो इस वक्त आपके पास दो ऑप्शंस है, या आपकी बहन के पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन तो ये है, थोड़ी सी रिस्की ऑप्शन है, अगेन मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको एडवाइस ना समझिएगा। एक रिस्की ऑप्शन ये है कि जो ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आप 28 डेज से कम टाइम के लिए ओवरस्टे करेंगे तो हम उसको इग्नोर करेंगे और हम आपको ग्रेजुएट वीज़ा दे देंगे। तो इसमें रिस्की एप्लीकेशन ये है कि अगर आप उनके वीज़े को एक्सपायर होने देंगे 15 मई को, तो आपके पास 28 डेज हैं जिसके अंदर आप ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यानी कि टेक्निकली आप ओवरस्टे हो जाएंगे, लेकिन एक कैटेगरी एक चीज़ बताई गई है ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर कि अगर आपका ओवरस्टे 28 डेज से कम है और आप ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब वो फिर, क्योंकि आपने कहा कि डिग्री 23 मई को आ जाएगी, तो जो उसमें गैप है वो अबाउट अंडर 10 डेज है। लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि अगर उस डेट को डिग्री नहीं आई तो जारी बात है कि जो एप्लीकेंट है वो ओवरस्टे बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में बेहतर तो यही होता है कि एप्लीकेंट कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल दे ताकि 3C इन एग्जिस्टेंस में रहे, और जब उनके पास डिग्री आ जाए तो वो फिर उस एप्लीकेशन को वेरी करके, जिसको हम कहते हैं विड्रॉ करके, नई एप्लीकेशन डाल दें अंडर ग्रेजुएट वीज़ा। तो वो बेसिकली एक्सरसाइज होती है। जारी बात है कि जब आप वेरी करते हैं, विड्रॉ करके नहीं डालते हैं, तो फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे चले जाते हैं। लेकिन अभी तक तो देखने में ही आया कि होम ऑफिस इस टाइप की एप्लीकेशंस पे लोगों के हक में फैसला दे रही है। लेकिन प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझें, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आपने एक बात ज़रूर जिक्र की कि जी किसी ने बोला कि जी एश्योरेंस की आप एप्लीकेशन डालते, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं होती, वो एक ईमेल होती है होम ऑफिस को। उसमें सिर्फ इशू ये है, क्योंकि मैं जब आप बात की थी मैं जल्दी से चेक कर रहा था कि एश्योरेंस की नई पॉलिसी चेंज तो नहीं हुई। मुझे जितना भी मैंने जल्दी में चेक किया है, कोविड वाली जो एश्योरेंस पॉलिसी है वो चेंज तो नहीं हुई। तो अभी भी वही है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपकी कंट्री में क्वारंटीन आप नहीं अपने आप को कर सकते, जिसकी वजह से आप वहाँ जा नहीं सकते। तो ये उस वक्त बहुत, आप समझ लें, हेविली यूज़ हो रही थी। हमने भी काफ़ी लोगों के लिए यूज़ किए जब कंट्रीज़ लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्वारंटीन थी या लोगों के पेरेंट्स थे। तो अब हालात बड़े डिफरेंट हो गए, ट्रैवलिंग वापस खुल गई है, स्पेशली अगर आपके जैब्स लगे हुए हैं। तो आई थिंक एश्योरेंस एप्लीकेशन वुड बी ज़रा मुश्किल हो जाएगा वो हासिल करना उसका लिए। हाउएवर, बिल्कुल मैं एक बात आपको अर्ज़ करके बोल देता हूँ कि अगर टाइम है, क्योंकि आपने बोला कि जी ये 15 मई को एप्लीकेशन ख़त्म होगी, आपके पास टाइम कम रह गया, 4 दिन रह गए, वरना वो कम से कम अगर महीने पहले इंश्योरेंस की एप्लीकेशन डाल देती, ईमेल ही है क्या पता मिल जाती हफ्ते की या 2 हफ्ते की इंश्योरेंस, तो फिर ठीक था। अब उन्हें टाइम बड़ा कम उनके पास रह गया, बिकॉज अगर वो अभी ईमेल करेंगी भी इंश्योरेंस टीम को, वो जवाब नहीं देंगे, तो मोस्ट लाइकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, तो वो फिर शायद उनके कोई ह्यूमन राइट एप्लीकेशन उनके लिए डाल दें, जस्ट फॉर द सेक कि उनका वीज़ा ख़त्म ना हो, वो 3C के अंडर आ जाएं। एक बात आपने इंपॉर्टेंट बोली कि जी मेरी एप्लीकेशन में बड़ा टाइम लग रहा है। वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करके प्रीमियम सर्विस पे नई एप्लीकेशन डालें, क्योंकि एप्लीकेशन एक दफ़ा होम ऑफिस के पास पड़ी हो तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पैसे दे के उसको प्रीमियम में कन्वर्ट करा लें। वो आपको विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे काफ़ी लोग एक बात बोलते हैं कि तारिक भाई, मेरे एम्प्लॉयर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि जी हमें प्रूफ दो कि आप के पास राइट टू वर्क है। आई डोंट नो क्यों एम्प्लॉयर्स एप्लीकेंट्स को तंग करें, बिकॉज एम्प्लॉयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून अब थोड़ा सा सख्त हो गया उनके लिए कि उन्होंने आपकी चेकिंग सर्विस करनी है। आपने सिर्फ उनको अपना UAN नंबर देना है और वो आपके काम का चेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने ऐप यूज़ किया, जो IDV ऐप होती है, तो फिर आप उनका शेयर कोड हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले, अगर अभी कॉल आई तो मैं अगले कॉलर की तरफ भी चला जाऊंगा। अगले जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ तारिक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच जी। सर मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी सी। ईयू है कि हमने अपील विन की हुई है, 9 हो गए हैं जी अभी तक हमें कोई पासपोर्ट के लिए वो कॉल नहीं कर रहा, हमें ईमेल कर रहे हैं। जी जी तो उसका कितना टाइम लग सकता है? बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें अभी वो बड़े आराम से 8 मंथ से लेके 14 महीने लगा रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। लिटरली मैं कुछ केसेस जानता हूं जिनमें 14 मंथ्स लग गए हैं लोगों को कांटेक्ट करने के लिए कि जी अपना पासपोर्ट भिजवाएं। उसका जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले किसी की कॉल आई थी, मैंने बोला कि आप होम ऑफिस के उस ख़ास डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आप बोलें कि जी जो अपील का डिपार्टमेंट था कि जी प्लीज़ हमारी अपील अप्रूव हुई हुई है, ये उसका रेफरेंस नंबर है, प्लीज़ जो आपकी लोकल वीएफएस का दफ्तर है उसको अपने अपील इम्प्लीमेंटेशन करवाएं उसकी, क्योंकि बड़ा टाइम हो गया है और द एप्लीकेंट नीड्स टू कम इनटू द कंट्री। आप ये ट्राई करें पहले होम ऑफिस के साथ, अगर वो आपको मुतमईन जवाब नहीं देते फिर अपने एमपी के थ्रू कराएं, और अगर आपके एमपी के थ्रू भी आपको मुतमईन जवाब नहीं मिलता तो फिर आप होम ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट इशू कर सकते हैं। कंप्लेंट ये नहीं होती कि आप ईमेल होम ऑफिस को करें कि जी हमारी ये कंप्लेन है। जो कंप्लेंट प्रोसीजर है होम ऑफिस का, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। वो एक अलग प्रोसेस है जिसमें आपको एक पूरे स्पेसिफिक ईमेल तैयार करके भेजनी पड़ती है, फिर वो एक अलग डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट जाती है, वो एक सर्टन टाइम के अंदर उसका जवाब देते हैं, और अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। एक अम्बन्समन है जिस पे फर्दर कंप्लेन जाती है, मिनिस्ट्रियल अम्बन्समन है जो नेक्स्ट स्टेज है कंप्लेन की, तो आप उधर जा सकते हैं। कुछ लोग मुझे मुड़ के कहते हैं तारिक भाई, और ये मेरी आई थिंक एक किसी से बात हो रही थी लास्ट वीक कि तारिक भाई आप कंप्लेन तो बता देते हैं लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी तो हम कर सकते हैं कि हम होम ऑफिस को चैलेंज करें कि जी हमारी एक्शन लो इसके ऊपर। देखें प्री एक्शन प्रोटोकॉल पहली बात है इट्स नॉट चीप एक्सरसाइज। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो पैसे चार्ज करेंगे, जबकि कंप्लेंट आप खुद भी कर सकते हैं, जो आगे अम्बन्समन है खुद कर सकते हैं, एमपी को चेज खुद कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि एज स्पॉन्सर्स एज एप्लीकेंट्स आप लोगों के पैसे बचें, तो उस सेंस में यू कैन डू दिस ऑल योर सेल्फ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन ये सारा काम करे तो ऑफ कोर्स दे विल चार्ज फॉर दैट सर्विस। लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल से बेहतर है ये कंप्लेन रेज करना, बिकॉज प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी उतना ही टाइम लग जाता है। लेकिन होम ऑफिस को बार बार कांटेक्ट करें, होपफुली कोई ना कोई उससे जवाब आ ही जाएगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग स्टूडेंट लीगल तरीके से आएंगे तो अप्लाई करते हैं तो रवाना उनको भी भेजेंगे, या जो लोग इलीगल आएंगे उनको सिर्फ भेजा जाएगा, और कब से भेजेंगे? थैंक यू भाई आपकी कॉल का। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट पे हूं कि रवांडा इज नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग है कि रवांडा विल नॉट हैपन, और बड़े ही इश्यूज हैं रवांडा के अंदर। और अगर उन्होंने जो सोच रहे हैं कि जी वनरेबल लोगों को हम नहीं भेजेंगे, बच्चों को नहीं भेजेंगे, हम यंगस्टर्स को भेजेंगे, तो आई थिंक यंगस्टर्स के भी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो लास्ट मिनट जुडिशल रिव्यू और कोर्ट्स में एप्लीकेशंस डालेंगे और काफ़ी मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज चैरिटीज़ आर ऑन बोर्ड विद दिस थिंग कि वो कह रहे हैं होम ऑफिस को कि जी आप गलत काम कर रहे हैं। काफ़ी अगर जब ये इम्प्लीमेंट हुआ भी, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है सारा सिलसिला, अभी एक और रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है कि उसमें क्या बोला है। आई विल पर्सनली बी वेरी सरप्राइज्ड कि ये एक्सरसाइज गो थ्रू होती है, और अगर गो थ्रू होती है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इसके ऊपर। ठीक है बाकी भी रिटर्न के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप रेफ्यूजी असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजने का सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे कोर्ट के अंदर, और आई थिंक इसके अंदर उनको लीगल एड भी मिलेगी। सो आई थिंक वॉच द स्पेस, इस पर काफ़ी अभी डेवलपमेंट होनी है, इट्स नॉट अ डन डील। तो आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज आपको इन चीज़ों की फ़िक्र करनी चाहिए। दिस इज़ जस्ट माई एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको एडवाइस ना समझें, बट पर्सनली आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज़ विल गो अहेड। बट देन अगेन चीज़ें बड़ी बड़ी हुई हुई हैं लाइफ में, इमिग्रेशन के अंदर आई हैव बीन सरप्राइज। सो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था स्पाउस वीजे का।
जी जी मेरी मिसेस जो है वो पाकिस्तान में है और हमारी जो शादी हुई थी लास्ट ईयर कोविड के दौरान, उसके साथ ही मैं वापस आ गया था और हमने एक्चुअली फिजिकली एक दूसरे के साथ इकट्ठे टाइम नहीं स्पेंड किया। जी तो उनकी मैंने एप्लीकेशन डाली है, तो मैंने आपसे पूछना था कि व्हाट्सएप लॉग्स ज़रूरी है सेंड करना या कोई और आप प्रूफ सेंड कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑब्वियसली हमने आपस में टाइम स्पेंड नहीं किया और ट्रिप्स वगैरह पे नहीं गए, तो इस पे अब क्या राय है? थैंक यू मेरे भाई। देखें, नॉर्मली होता है कि हम क्लाइंट को बोलते हैं या जो भी एप्लीकेंट होता है उसको ये कहते हैं कि पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आपकी शादी में और आपने अपने जो स्पाउस को इस कंट्री में बुला रहे हैं उसमें गैप कितना है। अगर शादी के फ़ौरन बाद आप उनको बुला रहे हैं, फ़ौरन बाद आई वुड काउंट 3 to 6 मंथ्स के अंदर, तो फिर आपको इतना ज़्यादा शो करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है या नहीं। लेकिन अगर गैप थोड़ा ज़्यादा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रूव करें होम ऑफिस को द रिलेशनशिप इज़ सब्सिस्टिंग। अब सब्सिस्टिंग में क्या चीज़ें होती हैं कि आप उनको अगर पैसे भिजवा रहे हैं, आप उनको टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो ये चीज़ें। अब कुछ लोग होते हैं कहते हैं तारिक भाई हम टेलीफोन पे बात करते हैं लेकिन व्हाट्सएप हमारे पास चैट नहीं है या वो हमारा पर्सनल डाटा है, हम क्यों होम ऑफिस को शेयर करें? बिकॉज जो हमारी व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशंस होती हैं वो इस नोयत की नहीं है कि हम हर एक के साथ शेयर करें, हमें क्या पता कौन कौन उसको पढ़ेगा। तो उस सूरत में बेहतर यह है कि कवरिंग लेटर में इस बात को एक्सप्लेन करें, जो आपने बड़े अच्छे तरीके से भी मुझे एक्सप्लेन किया। मुझे बिल्कुल प्लॉजिबल बात आपकी लगी है कि तारिक भाई हमारी कोविड में शादी हुई थी, उसके बाद हालात ऐसे नहीं थे कि मैं उसको इधर बुलाऊं, इस वजह से इतना टाइम हो गया। कभी कभी ये भी होता है कोविड ना भी हो, शादी होती है, शख्स कहता है यार थोड़ा टाइम मेरे पेरेंट्स के साथ गुजार ले, थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गुजार ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले इस बात को कि हमारी शादी हो गई है अब, एंड देन आई कॉल हर ओवर। कभी कभी होता है आपके हालात इधर ऐसे होते हैं कि आप एकदम बुला नहीं सकते क्योंकि आप अपने आप को सेट कर रहे होते हैं। दे आर ऑल वेरी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस। तो एज लॉन्ग एज आप अपनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दे दें, तो यार मेरी नज़र में, मैं कोर्ट में भी ये बोलता हूँ जी, ये थर्ड पार्टी 2 सफ़े देख के कैसे बता सकती है कि आपकी जेन्युइन रिलेशनशिप है या नहीं? आप हैं जिसने पूरी रिलेशनशिप क्रिएट की है, काफ़ी साल उसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं। एक शख्स 4 लाइनें पढ़ के कैसे असेस कर सकता है कि जी नहीं जी आपकी जेन्युइन है या नहीं है या है? तो उसमें इट रिक्वायर्स मोर देन दैट। तो इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है, जब होम ऑफिस इशू रेज करता है, ज़्यादातर केसेस कोर्ट में लोग जीत जाते हैं बिकॉज वो कॉमन सेंस से जज देखता है इन बातों को। लेकिन ज़ाहिर बात, अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई हमने 3,000 फिर लीगल फीस ऊपर देनी है, इतना पैसा खर्च किया, हम ये तो नहीं चाहते हम आगे कोर्ट में भी जाएं। तो बेहतर ये है कि कवरिंग लेटर में ये सारी बातें एक्सप्लेन करें, जिस तरह आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से बोला कि तारिक भाई हमारा कोविड का पीरियड था, फिर ये हो गया हमारी, इस वजह से मैं उसको ला नहीं सका और मैंने अपनी जॉब के लिए एकदम वापस आना था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम शादी के बाद उसके साथ गुजार भी नहीं सका। एंड इट इज़ वेरी, यार काफ़ी लोग हैं जो इतना लंबा, और ऊपर ऊपर से आपकी कोविड में शादी हुई, आप वैसे भी कहीं नहीं जा सकते यार हनीमून के लिए, आपने घर ही बैठना है। तो अक्सर लोग कहते हैं जी फिर मेरा काम का हर्ज होता है, मैं चाहता हूँ मैं वापस आऊँ, कमाई करूँ और अच्छे तरीके से फिर मैं अपनी वाइफ को बुलाऊँ। तो इसमें कोई मानत नहीं है, ये कोई नहीं है कि जैसी शादी करो 10वें दिन बुलाओ। काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं फिर अपनी वाइफ को बुलाएं। तो एज लॉन्ग एज आप ये सारी बातें एक कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेन करो, इट शुड बी फाइन। लेकिन सारी बात है मैंने ये वाले वीज़े नहीं देने होते, लेकिन अगर कम से कम किसी वजह से वो रिफ्यूज़ करते हैं, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर्ग्यूबल केस कोर्ट के अंदर। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। सॉरी, मैं अगेन माजरत खाऊँ, आपकी कॉल्स बीच में आती रहती हैं, लेकिन जब मैं जवाब दे रहा होता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कि फिर मैं कोई कॉल अटेंड ना करूँ। उसकी वजह ये होती है कि मैं चाहता हूँ कि मैं आराम से थम्मल से जवाब दे दूँ। वैसे भी हमारी अगले वीक तो हर वीक अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात तो हो ही जाती है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum. Muhammad told you earlier about my uncle. I just wanted to clarify one thing from you. You said about the family permit, the EEA family permit, and the EEA settlement scheme. What is the difference between those two, and what are the laws are different in those? Okay. That's the only what to ask you. Because you said that there is difference in terms of like once after 5 years in the settlement scheme, that you can go back and to tell them that you don't have to provide them because in the law states like that. So what is the difference between these two family permit, the EA family permit and the EA settlement scheme? What, if you just clarify that question for me, because I couldn't understand it properly. What are those differences? Okay. Thank you so much for your call. I mean, I would strongly, on this thing, I can advise you that you can always go back. The show is live and it comes back
I think it goes live and then it keeps on our channel, so you can all go back and you can look through the show again. And please, this show's purpose is information. Don't derive advice from it. So if you need specific advice, you need to contact the right person. But let me give you a competent person, not the right person. Let me give you a little bit of background into the EU scheme and the EU settlement scheme, or EU family permits. Up till 30th December, you were permitted, or 31st December, because the Brexit happened. So prior to the Brexit, you could apply for extended family member under EU family permits. And after that, an extended family member family permit, you could apply under the EU family permit. And then after we came out of the Brexit, after Brexit happened, and from the midnight of 31st of December, you could only apply under the EU settlement scheme. Now, the thing about the EU permit was that under the EU permit, if you were a durable partner, prior to December, you could make an application under the EU permit. But if you were a durable partner after EU settlement scheme, you could not make an application under the EU settlement scheme if you're a durable partner, because the requirement was that you must have a family permit. Now, let's look at what application or what implication this kind of visa had on parents. In terms of the family permit, anyone who's making an application for the parents prior to December, prior to Brexit, they were allowed to make the application in either one of the two ways. One way was that they could make the application under the EU family permit scheme. The other way was they could make the application in the EU settlement scheme. So people who made the application under the EU family permit scheme, they could come into the country, stay here for 6 months, and then make an extension under the EU settlement scheme. Anyone who came here under the EU settlement scheme came here for 6 months and they make an application for an extension under the EU settlement scheme. So when the question arises, then what is the main difference? Because a person on one route is coming under the EU family permit, I'm talking about the parents, and then making an extension after 6 months under the EU settlement scheme. And in the other scenario, they're already coming into the UK under the EU settlement scheme and they're making an extension under the EU settlement scheme. So where's the big difference? Because they're pretty much following the same pattern. The difference is in the policy guidance. Because if you were listening to my show very carefully, I mentioned, if you look at the EU settlement guidance, it states, if we give you EU settlement visa for entry clearance, you do not have to show dependency again. So if your parents came into this country under the EU settlement scheme, you could argue with the Home Office when you apply for an extension. Why are you asking me for dependency when your policy says that if my parents are granted a EU settlement visa for entry clearance, you are not going to ask me for dependency. So why are you asking me for dependency? So that is a way of you getting out of providing documents for dependency. I hope you have it, but if you don't have it, then you can use that argument. But if your parents are coming under the family permit, then the policy doesn't apply on them, because that's a different policy for the family permit. And there is no such thing written in that policy that if you come here on a family permit and you apply for the settlement extension under the EU settlement scheme, we will not ask for documents on the dependency. So that is the main difference. Now, the Home Office, because it's a policy, the Home Office can still turn around and say, we still want to see the documents. But of course, the policy has some weight on it. So that is the main difference. So it's a very, let's put it this way, it's a very high-end difference. A lot of people realize that this is the difference. And it's mainly used in litigation, in judicial process. When we are in court, we use this as a legal argument. Then, of course, all other things matter as well. So don't take this as advice. It's just journal information. If you still don't understand what we are discussing, please see a competent person, because then they will give you the time, because on the show I do not have the time to go in a lot of detail about these things. So thank you so much for your call again. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप तारिक भाई? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से. सबसे पहले थैंक्स है कि जब मैं यहाँ पर आया था यूके में, तो जब से आपने प्रोग्राम करना शुरू किए, तो मैंने आपसे हमेशा एडवाइस ली. आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी और मैंने तारिक भाई, पहले तो थैंक्स आपका. Thank you so much, bhai, for your kind words.
जी तारिक भाई, मैंने अभी 7 मंथ पहले नेशनलिटी की एप्लीकेशन करी मैंने जी, और वहां से तकरीबन 5 मंथ के बाद मुझे जवाब आया कि आपका पासपोर्ट लॉस्ट एंड स्टोलन में रिपोर्ट हुआ है हमारे पास, तो आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भेजें। तो मैंने भेज दिया जो मेरा करंट पासपोर्ट था। तो फिर वहां से आया कि नहीं, आपका ये तो ऑलरेडी हो चुका है लॉस्ट एंड स्टोलन। तो मैंने कहा मैंने तो कोई कहीं कंप्लेन नहीं करी, ना मैंने कोई, मेरे पास तो यही है जो करंट है। फिर तारिक भाई मैं एम्बेसी गया, मैंने एम्बेसी जाके चेक किया, वहां पर ही मेरा स्टेटस सही आ रहा है, जो पासपोर्ट मेरे पास है वो एक्टिव है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मेरा तो एक्टिव है, कोई नहीं है। तो कह रहे हमारी तो हमने इंक्वायरी की, ये हमारे पास लॉस स्टोलन में आ रहा है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप एम्बेसी से कंफर्म कर ले, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो तो पाकिस्तान ने इशू किया है और ना मैंने कोई कंप्लेंट की हुई है। तो तारिक भाई इसमें मुझे गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए। तो कह रहे हमारे पास लॉस स्टोलन में आ रहा है, किस तरह से उनको मुतमईन करूं, और मैंने ओरिजिनल अपने भेज दिए उनके पास। तो प्लीज मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इस सिलसिले में, और वो कोई जवाब नहीं दे रहे आप किसी भी उसका। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तारिक भाई कि आप एम्बेसी से कंफर्म कर लें। मैं 2 दफा एम्बेसी जाके खुद देखकर भी आ गया, मेरा एक्टिव है। अब ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास है और मेरे पास अपना जो ओरिजिनल है वो भी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मुझे कुछ गाइड करें, किस तरह मैं मुतमईन करूं उनको, प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी। आपके पास 2 तरीके हैं उनको मुतमईन करने के। एक तरीका तो ये है, बल्कि 3 तरीके हैं मुतमईन करने के। तो लेट्स गो वन बाय वन। थोड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी 2 इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक तो मुतमईन करने का तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अपनी निकलवाएं होम ऑफिस से। प्रॉब्लम उसके फ्री ऑफ चार्ज होती है सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट लगती है मिलने में 20-25 डेज लग जाते हैं। तो फिर क्योंकि आप ऑलरेडी केस वर्कर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ईमेल आती है तो वो स्पेसिफिकली केस वर्कर से आती है, तो मीनिंग आपकी फ़ाइल अब टॉप पे आ गई है। आप उनसे टाइम मांगे, बोले मैं अपनी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट निकाल रहा हूँ ताकि मैं ये देखूँ कि ये रिक्वेस्ट किसने डाली है, कब डाली है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट में डेट्स आएंगे कि कब रिकॉर्ड हुआ है। बिकॉज ये जो लॉस्ट एंड आप समझ लें रिपोर्ट होती है, ये ऑनलाइन रिपोर्ट होती है और होम ऑफिस को एक तरह से एप्लीकेशन इसकी जाती है। तो उसमें वो टाइमलाइन पता चल जाएगा कि किस डेट को गई है, किसने भरा है। मतलब आपको ये तो नहीं पता चलेगा किसने भरा है, लेकिन उसमें ईमेल्स होंगे, उसमें कॉन्टैक्ट होंगे, तो शायद आपको आइडिया हो जाए कि आपके किसी एजेंट ने या आपके किसी प्रीवियस सोलिसिटर लॉयर ने या किसी और ने ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाली। बिकॉज फिर आप होम ऑफिस को कह सकते हैं कि जी ये एक गलत एंट्री हुई है, बिकॉज मैंने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली, ना मैंने अपने एजेंट को ऑथराइज़ किया था कि वो, या इस शख्स को ऑथराइज़ किया था कि वो इस टाइप की कोई एंट्री डाले। बिकॉज देखें उनको ये अपने रिकॉर्ड में एंट्री नज़र आ रही है, तो यू ऑल्सो नीड टू सी कि ये एंट्री कब हुई है, किस दिन हुई है। तो एक तो तरीका ये, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट आने में टाइम लगता है और आपको होम ऑफिस से वो टाइम लेना है। तो एक तो ऑप्शन ये हो गई। सेकंड ऑप्शन ये होगी कि आप अपनी एम्बेसी से और पुलिस से रिपोर्ट ले लें कि आपने कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं करवाई लॉस और स्टोलन की इस टाइप की। बिकॉज नॉर्मली होता है कि आप पुलिस में भी रिपोर्ट कराते हैं और अपने एम्बेसी में भी जाके बताते हैं। तो अगर आप एम्बेसी से कोई लेटर ले लें इस टाइप का, या ईमेल पे जवाब ले लें, और पुलिस वालों से भी, आई डू नॉट नो पुलिस वाले किस हद तक अपने आप को असिस्ट करेंगे आपको, और यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट कि जी मैंने कभी यहाँ के रिपोर्ट तो नहीं की, इसका कोई आप मुझे प्रूफ दे सकते हैं। और अगर वो कोई ना भी प्रूफ दे तो एटलीस्ट आप मेंशन कर सकते हैं अपनी ईमेल में कि मैं अपने लोकल प्रीसेंट में गया था, मैंने इस सार्जेंट से बात की थी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। वो कोई आगे से लेटर नहीं देते, बट आई वेंट इनटू द प्रीसेंट उनसे बात करने के लिए, पुलिस स्टेशन में गया था। और ये आप सार्जेंट की डिटेल्स ले लीजिएगा जो डेस्क पे होंगे। अब अगर उसके बाद भी वो मुतमईन नहीं होते तो सारी बातें दे हैव टू गिव द रीज़न। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या रीज़न देंगे, बिकॉज पासपोर्ट तो आपने दे दिया, और आप अगर आपने वाकई जेन्युइनली एंट्री नहीं की तो कहीं ना कहीं किसी से गलती हुई है, और वो अनऑथराइज गलती हुई है, क्योंकि आपने तो किसी को ऑथराइजेशन नहीं दी थी इस टाइप की रिपोर्ट करने में। तो आप उल्टा उनको बोलें कि जी अच्छा, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि मेरे सिस्टम पे आपके कोई अनऑथराइज्ड एंट्री हुई है मेरे बारे में, इसको प्लीज़ करेक्ट करें, बिकॉज मैंने किसी को इस टाइप की ऑथराइजेशन नहीं दी। एंड आई होप उससे वो मुतमईन हो जाए, बिकॉज आपने अब तो पासपोर्ट भी दे दिया। देखिए इशू होता है जब कोई फाउल प्ले हो, तो इसमें तो जिस तरह आपने बोला कोई फाउल प्ले तो है नहीं, और उल्टा आपने पासपोर्ट भी उनको दे दिया। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट सर। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, हाउ आर यू? ओके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। Yeah, Tariq, I got a question. I got married in Pakistan back in 1999.
I bought my wife over in 2000, and in 2001 I got her indefinite leave to remain, and I would like to apply for her citizenship. So I was just wondering, what kind of documents would I need to give? Would I need to give 3 years back, 5 years document, or back 22 years? Thank you so much for your call. As a starting point, make sure she has done the Life in the UK test and the New English test, because she's been here for a very long time. The English test requirement evolved over the years. So if she doesn't have a degree, so make sure she does an English test. And if she's done the Life in the UK, that's fine, but you still have to give an English language test. In terms of the residential requirement, when you make a nationality application, technically you make the application under the 5-year route or the 3-year route. Now, what is a 5-year route or a 3-year route? A 5-year route is you say that you've been in the country for 5 years and you're making your application for naturalization and you've had indefinite leave to remain, and there's been a gap of 1 year between you making the application and you gaining your indefinite leave to remain. The 3-year rule is you have been in the country for at least 3 years, you're married to a British citizen, and you have indefinite leave to remain. So in other words, people who are married to British citizens don't have to wait for 1 year to make the application for indefinite leave to for naturalization after indefinite leave to remain. My apologies. So in your case, if you are a British citizen and your wife has got indefinite, she's married to a British citizen, she just makes the application. That's the starting point. Now, in terms of the period of residency, they're only going to be concerned with 3 periods of residency. Starting off, it is a 3-year application under the 3-year residency period. So the absences will be calculated based on those 3 years. And then they want to make sure that the day you make the application, you go back exactly 3 years. On that specific day she was in the country, she was not on holiday. In terms of employment, they'll go back 10 years and they need to know the record of her employment for 10 years. In terms of good character, that she never was an overstay in this country, they'll go back 10 years. So the max they'll go back is 10 years, but that is only in terms of employment and immigration status, that you had clear immigration status all these 10 years. Thank you so much for your call. ऐसा करते हैं कि एक आखिरी कॉल ले लेंगे और फिर मैं अपना क्लोजिंग करूंगा. जिस तरह आपको पता है कि अब हम लोग लाइव करते हैं, कोई बीच में गैप नहीं होता, तो मैं भी थोड़ा फिर थक जाता हूँ. बट मज़ा बड़ा आता है, एंड आई थिंक वी गोना कीप कंटिन्यू. मैं इसी तरह इंशाल्लाह ताला करता रहूँगा. इनफैक्ट जिस तरह मैंने अभी काफ़ी शोज़ भी करने हैं जो छोटे छोटे होते हैं अबाउट अदर इश्यूज़, एंड आई एम डेफिनेटली यू विल एंजॉय दैट. और मैं थोड़ा सा लिटिगेशन का भी करूँगा. एक और कॉल ले लेंगे जब भी आई. और एक बात मैं ज़रूर आपसे बोलूँ, एवरी वेडनेसडे 6 to 7, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. लेकिन प्लीज़ इस शो को सोशल मीडिया पे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में और बाकी जगह पे थोड़ा सा एक्सपोज करें. मैं एक्सपोज मत कह रहा हूँ कि थोड़ा सा उसको बताएं लोगों को इसके बारे में, ताकि हमारी जो गैदरिंग है वो थोड़ी बढ़े. और आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट. मेरे ख्याल से जाने से पहले कपल ऑफ थिंग्स. एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि जी ज़बरानों की कोई अपडेट आई है या नहीं आई. मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, मैंने बल्कि आपसे अर्ज़ भी किया था कि अगर कोई ज़बरानों की अपडेट आई तो मैं लाजमी शेयर करूँगा. अभी तक ज़बरानों की कोई अपडेट नहीं है, सो प्लीज़ बी पेशेंट. और अगर कोई अपडेट आई तो मैं आपसे शेयर करूँगा. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं लोगों की, तारिक भाई इतना टाइम लग गया, इतना टाइम लग गया. सारों को लग रहा है इस वक्त टाइम, सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. मुझे नहीं पता कि यूक्रेन की वजह से है या कोरोना वायरस की वजह से या ये और जो ये पॉलिसीज़ अपनी बना रहे हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है. लेकिन जेन्युइनली हर एक की एप्लीकेशंस में इस वक्त डिलेज आ रही हैं. तो अगर आपने किसी की शादी पे जाना है, आपने ईद पे जाना है, और यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, देन यू हैव टू सीरियसली कंसिडर उन अपने फैमिली को बताने के लिए कि जी शायद हम ना आ सकें, आप एक्सटेंशन डालने लगें और आप वो पैसा खर्च करें एंड गो फॉर द प्रीमियम सर्विस, बिकॉज आजकल टाइम लग रहा है. एंड प्लीज़ टाइम लगने का मतलब यू हैव टू बी पेशेंट. आप चाहे 500 ईमेल करवा लें होम ऑफिस को, जो टाइम लगना है वो लगना है. उसमें कोई इतना वो, मैंने भी काफ़ी ईमेलें की हैं लोगों के लिए, मैंने नोट अप कर लिया कि होम ऑफिस बिल्कुल उसके ऊपर उस तरीके से एक्शन नहीं ले रहा जिस तरह एक ज़माने में लेता था. लेट्स टेक अ लास्ट कॉल, फिर इसके बाद हम एक दूसरे को खुदाफिज बोलेंगे. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. अपना सवाल पूछ लें.
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? मेरे बेटे ने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई किया था जी। तो उन्होंने जारी सर्विसेज वालों ने तकरीबन 8 वीक्स अगो जी। पासपोर्ट मांगा, तो डॉटर इन लॉ ने पासपोर्ट तो सबमिट करवा दिया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ जवाब अभी तक नहीं आया है। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। फ़िलहाल तो बेहतर ये है कि आप सब्र करें, होपफुली वो बड़ी जल्दी आपको कोई ना कोई जवाब दे देंगे, वरना उसी ईमेल पे आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन वही जो मैंने सारों को रिक्वेस्ट की कि इस वक्त जिनकी भी एप्लीकेशंस हैं डिलेज हो रहे हैं, सब्र के अलावा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं कुछ और आपको बोल सकूं। हाँ, अगर आप कंप्लेंट करना चाहते हैं होम ऑफिस के ख़िलाफ़, आप बिल्कुल करें, आपका राइट है। लेकिन वो भी प्रोसेस इतना छोटा नहीं है, 6, 7, 8 मंथ्स लग जाते हैं गेट टू द ombudsman। जब आप मिनिस्ट्रियल ombudsman में जाते हैं दैन थिंग्स स्टार्ट टू गेट सीरियस। वहाँ फिर वो होम ऑफिस को थोड़ा कान वान खींचते हैं, दैन थिंग्स मूव ऑन। थैंक यू सो मच। और जो भी आते हैं अपना प्रेशियस टाइम निकाल के आप शो पे आते हैं, थैंक यू। और मुझे नहीं पता था, और मैं हमेशा इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि जब मैं 10 साल से ऊपर 12 माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए टीवी करते हुए, अब मैं सोचता हूँ दिस बिन अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने नहीं सोचा था कि जब हम अपना चैनल शुरू करेंगे इतनी सपोर्ट मिलेगी। मैं तो ये सोचता था तैयार करके कि जी कॉलें भी नहीं आएंगी। तो थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के शो के अंदर कॉल करते हैं, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। आई गेट वेरी एक्साइटेड। मैं आई लुक फॉरवर्ड टू वेडनेसडेज कि मैं अपना शो करूं, और आई होप वी डूइंग अ गुड जॉब फॉर ईच अदर। अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगले वेडनेसडे अगेन 6 बजे होगी। लोगों को ये बात शेयर करें ताकि जितने से जितने लोग आएँ शो में उतनी बेहतरी हो, शो के लिए भी और आपके लिए भी। सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल और वीडियोस करूँगा, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगेन मुझे क्योंकि लोग पूछते हैं तो अब मैं बार बार बोलूँगा कि अगर आपने मुझसे रब्ता करना है, उसकी बड़े आसान तरीके है। मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई करके डेट और टाइम दे दूँगा। वी आर बेस्ड इन साउथहॉल, वेस्ट लंदन। और अगर आपने टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेनी है तो प्लीज़ वेबसाइट पे वो सर्विस अवेलेबल है, वरना मैं आपको लिंक भेज दूँगा तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।